ہفتے کی رات تقریباً 11:41 پہ چلی گئی لائٹ. ایسا لگا جی کہ نارمل کوئی پاور بریک ڈاؤن ہے. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ لوگوں نے فون کرنا شروع کر دیا کہ بھائی آپ نے ٹویٹر پہ دیکھا ہے؟ نہیں, کیا ہوا. یہ صرف کراچی میں لائٹ نہیں گئی, یہ پورے کے پورے پاکستان میں لائٹ چلی گئی. معاملہ تو گڑبڑ ہے. جب یہ بات ہے جی معاملہ تو گڑبڑ, اس کے بعد میں نے کہا جی اب تو پھر پاپ کارن پکڑ کے جانا چاہیے ٹویٹر پہ. مطلب اب تو یہی تو مومنٹ ہے, مطلب جو پورے دن کی جو میں نے انٹرٹینمنٹ مس کی وہ تو مجھے ٹویٹر سے ملے گی. پھر شفاعت ٹویٹر پہ میں نے دیکھا کہ جو ریومر ملز چلانے والے لوگوں نے کیا باتیں نہیں لکھی, اور بس ایسا لگ رہا تھا بس اپنے گھر کا سامان پیک کر کے نا کسی بیڈ کے نیچے چھپ جاؤ, کیونکہ کچھ بس جنگ چھڑ گئی ہے. بعض لوگوں نے تو مطلب وہ جو ہے نا ٹویٹر پہ باقاعدہ بیلچے لیے اور ٹویٹر پہ خندقیں کھودنی شروع کر دی. حالانکہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں ان لوگوں نے گھر میں رضائی سے اٹھ کے نا مطلب کروٹ بھی نہیں بدلی ہوگی, مونگ پھلی بھی وہیں کی وہیں ہوگی, لیکن وہ ٹویٹر پہ ایسے ایکٹ کر رہے تھے کہ خندقیں کھود لو, سامان لے کے بنکروں میں چلے جاؤ, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی میں باہر سے گزر رہا تھا پر یہ ہو گیا, وہاں پہ سائرن کی آوازیں آ رہی, کدھر سے آ رہی سائرن کی آوازیں؟ مجھے تو کہیں سے سائرن کی آوازیں نہیں ہے, بس اندھیرا ہی اندھیرا تھا, خاموشی تھی. جن کے گھر جنریٹر تھے, جن کے گھر یو پی ایس ٹی وی انجوائے کر رہے تھے, خبروں پہ بھی دیکھ رہے تھے. لیکن کیسے شفاعت, مطلب بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ اتنے کریٹو کیسے ہیں, یہ ایک سوال ہے. بہرحال جناب حکومت بیٹھی سر جوڑ کے, کیا ہوا ہے؟ اچھا آپ کو پتہ ہے نا یہاں پاکستان میں 2 جگہیں ہیں جو کہ 2 کلسٹرز ہیں جو کہ ایسے موقع پہ گڑبڑ کرتے ہیں. ایک تربیلا منگلا اور دوسرا جناب گدو جام شور. تو یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا تھا کہ فالٹ تربیلا منگلا میں آیا ہے یا گدو جام شوروں میں آیا ہے. فائنلی جناب عمر ایوب صاحب سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب فالٹ اتنا تو پتہ چل گیا ہے کہ گدو سے آیا ہے, کب آیا ہے, کہاں آیا ہے, یہ نہیں پتہ چل سکا. کیا کہا انہوں نے, سنواتے ہیں آپ کو. وجوہات اس وقت ہمیں معلوم نہیں ہے کیونکہ رات کو اندھیرے میں ہم نے بھیجی ہوئی تھی. گدو کے ارد گرد بہت زیادہ دھند تھی, وہاں پہ جب دھند کم ہوگی تو وہاں پہ وہ انویسٹیگیشن اس کی ہوگی. 500 kV کے 3 سرکٹ نکلتے ہیں اور یہ اس وقت پتہ نہیں لگ رہا کہ کس سرکٹ میں وہ آیا تھا فالٹ. انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی, حقائق ہیں سامنے آ جائیں گی. آپ کے گھر میں کوئی فیوز میں اوور لوڈنگ ہوتی ہے تو وہ خود بخود فیوز جو ہے وہ اڑ جاتا ہے, اس کو ریسیٹ کرنا پڑتا ہے. یہ وہی سسٹم ہوا, 10,302 میگا واٹس چل رہے تھے جو سسٹم سے ایک دم آؤٹ ہو گئے. تربیلا کو ہم نے 2 بار سٹارٹ کیا, وہ سنک ہو گیا. آئسکو کا سسٹم, لاہور الیکٹرک, کراچی الیکٹرک تقریباً 400 میگا واٹ وہاں پہ سپلائی اس کی شروع ہو چکی ہے, اور یہ اور چند گھنٹے ہمارے لگیں گے اس سسٹم کو واپس آن لائن آنے میں. اور کل رات ہم نے دیکھا کہ کراچی کے بہت سارے علاقوں میں کل رات بھی لائٹ نہیں تھی, نہ صرف کراچی بلکہ دیگر کچھ شہر میں بھی ایسی صورتحال تھی. اس تمام سچویشن پہ اپوزیشن نے بجلی کے بریک ڈاؤن پر حکومت کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا. نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب یہ کہتی ہیں کہ جی زیادہ بجلی بنانا بھی نواز شریف کی ایک بڑی غلطی قرار دیا جا رہا ہے. رات کو پورے ملک کے اندر بجلی کا بریک ڈاؤن ہو گیا تو آج وزراء بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف کی غلطی تھی کہ اتنی بجلی بنا گیا اور ٹرانسمیشن نہیں ہوئی. 14,000 میگا واٹ بجلی 72 سال میں کسی نے نہیں بنائی جو نواز شریف نے بنائی. پنجاب میں 5,500 میگا واٹ بجلی تاریخ میں نہیں بنی جو شہباز شریف نے بنائی. گرمیوں میں انہی نالائقوں نے نواز شریف کی بنائی ہوئی بجلی 25,000 میگا واٹ بجلی عوام تک پہنچائی جو نواز شریف نے بنائی تھی. اور سردیوں میں وہ کھپت آدھی ہو جاتی ہے, جو آدھی بجلی ہو جاتی ہے کھپت اور ڈیمانڈ, وہ عوام تک نہیں پہنچا سک رہے اور کہتے ہیں کہ نواز شریف کی غلطی ہے. مریم اورنگزیب کا یہ بیان شبلی فراز صاحب کی پریس کانفرنس کے جواب میں تھا, جنہوں نے اس فنی خرابی کا جو دفاع ہے وہ ایسے کیا کہ جناب ماضی کی حکومتوں نے بجلی گھر تو بنائے لیکن ٹرانسمیشن لائنز نہیں بنائی, جس کی وجہ سے پاور بریک ڈاؤن ہوا. اس کے جواب میں جناب فردوس عاشق امان صاحبہ سامنے آئی اور انہوں نے مریم اورنگزیب صاحب اور صاحبہ اور احسن اقبال صاحب کی پریس کانفرنس کے جواب میں کہا کہ جناب ایک خالصتاً ٹیکنیکل معاملہ ہے لیکن اس کے اوپر بھی اپوزیشن سیاست کری. کیا کہا انہوں نے, آپ کو سنواتے ہیں. رات جب یہ ٹیکنیکی اور فنی وجوہات کی بنیاد پہ ایک دم سے جو فالٹ آیا, لیکن اپوزیشن کے نادان دوستوں نے اس کو بھی افواہوں کا اور اپنی سیاست چمکانے کا ذریعہ بنایا. سوشل میڈیا پہ پاکستان کی قومی سلامتی کے ساتھ کھیلنے کی ایک دفعہ پھر کوشش کی گئی. غیر یقینی صورتحال ابھارنے کے لیے زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا. غیر ذمہ دارانہ رویہ جو ہے
अपोजिशन को इसे तर्क करना होगा, क्योंकि बहसीत कौम जब ऐसे चैलेंज आते हैं तो उन चैलेंजेस से कौमें इकट्ठी लड़ती हैं। मुल्क भर में जो एकदम पावर ब्रेकडाउन हुआ है, क्या ये एक नॉर्मल चीज़ थी और ऐसी क्या फनी या ऐसी क्या टेक्निकल फॉल्ट थी? इस हवाले से हम बात करेंगे। एनर्जी एक्सपर्ट अरशद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। अरशद साहब, ये जो हमारे बहुत सारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं, इनके लिए ज़रा आसान अल्फाज में बताएं कि वॉज इट नॉर्मल कि एकदम पूरे पाकिस्तान में लाइट चली गई थी? क्या टेक्निकल इसमें ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से लाइट चली? क्योंकि हमने तो देखा कि लोगों ने टेक्निकल वजूहात को तो साइड पे कर दिया, र्यूमर्स चलाना शुरू कर दिया। जी अस्सलाम, असल बात ये है कि ये जो फनी खराबी थी ये प्योरली एक ह्यूमन एरर था। हाँ, दुनिया भर में जितने भी जो ट्रांसमिशन सिस्टम थे ये इसमें फेलर होता है। अमेरिका में हुआ है 12 जुलाई 2002 में, इंडिया में ब्लैकआउट हुआ है, हाफ इंडिया में हुआ है। ऐसा होता है लेकिन वेरी रेयर, बहुत कम। हमारी जो नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी है जिसे कहते हैं NTDC, इसमें अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं कि ओवर द लास्ट 15 ईयर ये कोई 5वां 6ठा वाक़या है। इतना ज़्यादा दुनिया में कहीं नहीं होगा कि इतना ज़्यादा फेलियर, और स्पेशली जो कल का वाक़या हुआ है, कल में पूरी दुनिया में इस ट्विटर से हट के ऑन एज ए सीरियस नोट देखें, गार्डियन से लेके CNN तक पूरी दुनिया में कवर हुआ कि पूरा पाकिस्तान ब्लैकआउट हुआ है। ये अनप्रेसिडेंटेड है। यहाँ एक बड़ा सीरियस हमें एक हमारी एफर्ट होनी चाहिए कि क्या वजूहत हुई है बजाय कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे। पहले ये बात बताऊँ कि लेट्स से पूरे पाकिस्तान में जितने भी पावर प्लांट है वो एक नेशनल ग्रिड से मंसलिक है, जो कि कराची से बल्कि गुद्दू से हैदराबाद से लेके पेशावर तक जाती है। ये हमारी बैकबोन है। इसमें बेशुमार पावर प्लांट है और अभी हमारी कैपेसिटी 35,000 मेगावाट है। एक बात क्लैरिटी में बताऊं कि अगर कोई पावर प्लांट ड्रिप हो जाता है तो सिस्टम में प्रोविजन है कि वो आइसोलेट हो जाए। जैसे उमर अयूब ने एक बात तो की है कि जैसे घर में फ्यूज लगे हो तो उस फ्यूज में अगर एक कमरे में इशू तो उस एक कमरे में आना चाहिए, ये नहीं कि पूरा घर ही जो है वो ब्लैकआउट हो जाए। पहली बात ये है कि ये जो गुद्दू में जो इशू है इससे ऑफशूट जाती है हमारी ट्रांसमिशन लाइन टुवर्ड बलूचिस्तान। मेरे जो इंफॉर्मेशन है इसमें मेंटेनेंस नहीं हुई और असल इशू है कि ये मेंटेनेंस मांगती हैं। इसी तरह जो हमारा जो ये सिस्टम है, ये जिसे कहते हैं कि आपको जो अलर्ट करता है जो कहीं भी ड्रिप हो जाए तो इसका वो पावर प्लांट आइसोलेट हो जाए, पूरे पाकिस्तान की नेशनल ग्रिड पे बर्डन ना पड़े। अर्शद साहब, ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। ये होना चाहिए सारी स्टेट्स में जो पावर क्लस्टर्स हैं उनको आइसोलेटेड होना चाहिए। प्लीज कंप्लीट करिए, फिर मैं सवाल करता हूँ। कंप्लीट कीजिए। अच्छा, दूसरी बात ये इसकी फ्रीक्वेंट टेस्टिंग होती है कि क्या हमारा सिस्टम ठीक है, इन प्लेस है या नहीं है। ये 3 माह 6 माह 9 माह और 1 साल, इसकी इस तरह 3 माह के इंटरवल से इसकी टेस्टिंग होती है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा इशू हो जाए, कोई ड्रिपिंग हो जाए तो कहीं पूरा सिस्टम कोलैप्स ना हो जाए। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन के ताल्लुक है और जो मैंने NTDC को क्लोजली देखा भी है, असल बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम ऐसे सब्जेक्ट्स पे चले गए जहां पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होगी। बात यह है कि ये एक प्रोफेशनल इदारा है। इस प्रोफेशनल इदारे को 12 जुलाई 2017 में एक ब्यूरोक्रेट ने टेक ओवर किया जो कि कमिश्नर डिप्टी सेक्रेटरी थी, और 20 जुलाई 2020 तक 4 साल उस बंदे ने इस्लामाबाद से बैठ के इसको कंट्रोल किया। इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद लाहौर में है। अब आप देखें, शफाफ सोचिए कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें प्रोफेशनल है, बड़े अच्छे इंजीनियर्स हैं, बड़े प्रोफेशनल है, यहाँ से लोग अमेरिका भी गए और कनाडा भी गए, पूरी दुनिया हमारे लोगों को पता नहीं है। असल इशू ये है कि जब एक ब्यूरोक्रेट आया जो कि डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इसकी तरफ ध्यान किसी का नहीं जा रहा। मेरे ख्याल में आप लोग इसको हाईलाइट करेंगे कि एक इदारे में जब एक आउटसाइडर आ जाए जिसका इस प्रोफेशन से ताल्लुक ही ना हो और वो इस्लामाबाद से इसको रिपोर्ट चला रहा हो, तो देखिए आपकी जो सारे SOP हैं, जो सारे स्टैंडर्ड हैं, जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन चलनी चाहिए, उसका ध्यान उधर नहीं जाता। तो एक कोलैप्स हुआ है मैनेजमेंट लेवल के ऊपर। दूसरा क्या है कि किसी ने ये नहीं देखा कि ये इसकी मेंटेनेंस हो रही है या नहीं हो रही, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बात आ रही है कि जी
मुस्लिम लीग नून के वक्त में ऐसा काम नहीं हुआ। देखिए एक बात कहना पड़ेगी कि हैदराबाद से लेके फैसलाबाद, हैदराबाद से लेके लाहौर तक 600 केवीए की लाइन ये सीपे का हिस्सा है और मेरे ख्याल में इस साल कंप्लीट हो जाएगी। जी जी। इशू ये नहीं है पॉलिटिकल पॉइंट्स का, इशू तकनीकी ह्यूमन एरर और नेग्लिजेंस का है। टेक्निकल अब यहाँ पे सर मैं इस पे आता हूँ कि ह्यूमन एरर और ये सब बात की है। फिलहाल जो सबसे बड़ा मसला है वो एनटीडीसी में हम 500 केवी की लाइंस के बारे में सुनते जो हैं, जो कि ऑब्वियसली जो लोड सेंटर है पंजाब वहाँ से गुजर रही हैं, लेकिन जो अल्टरनेटिव रूट्स हैं, अल्टरनेटिव लाइंस हैं, उनके हवाले से बात नहीं की जा रही। दासू और इस्लामाबाद के बीच में 765 केवी की एक बहुत बड़ी लाइन डलने की बात की जा रही थी, जिसने दिसंबर में एनर्जाइज हो जाना था। मुझे नहीं मालूम कि अभी तक वो एनर्जाइज हुई है या नहीं, लेकिन अगर ट्रांसमिशन लाइन ज्यादा होंगी हमारे पास तो इस किस्म के जो ब्रेक डाउन हैं उनमें हमारे पास कम से कम एक बैकअप ऑप्शन आ जाएगा। आपको नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए? देखिए ये जो 600 केवी की, मैं तो पहले आपको दूं कि पहले 500 केवी की और अब जब 600 की आ रही तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा हमारे पास अल्टरनेट आ रहा है। और पहले इसके लिए फंडिंग के लिए कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं आ रहा था। अब जब ये अल्टरनेट आ रहा है, ये जो आपने बात की बिल्कुल ठीक बात की, और इसके लिए ये मेरा ख्याल है इस साल जुलाई में ये कंप्लीट हो जाएगा, ये इशू हमारा हो जाएगा। लेकिन अगर एक भी हो तो इसके भी मैयर से इसके ऊपर भी हमारे पास आप कह सकते हैं कि अरेंजमेंट थी कि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई इशू ऐसा हो जाए तो जैसे मैंने कहा ना कि उसको आइसोलेट होना चाहिए, जैसे गुद्दू है या साहिवाल है या कोटरी में है या फैसलाबाद, किसी जगह पे तरबेला है। असल इशू उस निजाम की वो जो एनपीसीसी नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर में जिसमें जायका ने बहुत बड़ी फंडिंग की, फॉल्ट आइसोलेट हो जाता है सर, लेकिन मसला उस फ्रीक्वेंसी का होता है कि फॉल्ट के आइसोलेशन की सूरत में फ्रीक्वेंसी सप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से पावर हाउस आउट होने शुरू हो जाते हैं। बट एनीवे, थैंक यू सर। अरशद अब्बासी साहब हमारे असातिज़ा में से हैं और एनर्जी में डेफिनेटली बड़ा नाम रखते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपके फीडबैक पॉइंट बड़े अच्छे बताया। मतलब एक तो जो टेस्टिंग का प्रोसेस है ना वो नहीं रुकना चाहिए, वो Exactly. एक पर्टिकुलर इंटरवल्स के बाद वो होना चाहिए। देन ऑफ कोर्स वो एक मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इशू था, उसको टेक्निकली हैंडल करने के लिए मतलब एक शिप वही बंदा चला सकता है जो कि जानता है शिप को कैसे चलाना है, और साथ में मेंटेनेंस ऑफ कोर्स, क्योंकि जैसे पूरी दुनिया में कि हर अखबार में हर हेडलाइन में जरूर आया कि जी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पावर ब्रेकडाउन हो गया और हर शहर तारीकी में डूब गया। सो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी हेडलाइन थी, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली जी। और एक चीज़ मेरे ख्याल में सियासी पॉइंट स्कोरिंग के दरमियान रह गई, और वो ये कि जो फॉग है वो इतनी डेंस है जिसकी वजह से इस किस्म के फॉल्ट्स मल्टीपल शॉर्ट सर्किट्स हो सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं। Anyway, जनाब, ऐसी फॉग और ऐसी सर्दी दुनिया के दूसरे ममालिक में भी होती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन से नहीं होती। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.